to say, but it does not provide you transparency. So transparency आपका right to information से ही मिलती है. Okay, next question. Which one of the following is true with respect to make the government legitimate? Free A, and fair elections. of politicians. B, people's movements. C, free and fair elections. D, holding of powers. D option पता नहीं कैसा क्या Free, रहेगा. कौन सा free ऑप्शन and होगा? fair elections. C. ठीक है. लेजिटिमेसी आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन से ही मिलती है. क्रेडिबिलिटी इज रिलेटेड विद, यू कैन से, अकाउंटेबिलिटी. Credibility of politicians results in better accountability probably, या better trust on the government. People's movement reflects the strength of democracy. लेकिन अगर हमें करना है, if we are talking about legitimacy of the government, then C, free and fair elections, is going to be the correct one. Okay, fourth question. Which one of the following is true with respect to decisions in a democracy are more acceptable to the people? A, taken swiftly and implemented quickly. B, taken by giving privileges to the people. C, taken through elites' votes. D, taken after following due process. कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? C. अच्छा, टेकन थ्रू एलिट्स वोट्स मतलब क्या हुआ इसका? सी अगर ऑप्शन कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो? अच्छा, सी के अलावा और कोई कहना चाहेगा? मतलब कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? एक ऑप्शन तो हमारे पास. सर इसमें जो वोट्स का, इसमें मतलब जितने भी लोग हैं इसमें हर कोई एक पार्ट ले सकता है और एक्सेप्टेबल होता है. यहाँ पे किसी को हम मना नहीं कर सकते हैं. एलीट का मतलब क्या होता है? जो ये दिया हुआ है, आप जो सी ऑप्शन कह रहे हो, टेकन थ्रू एलीट्स वोट्स, तो व्हाट डू यू मीन बाय एलीट, एलाइट, जो भी कहना चाहो, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड? सर इलाइट्स में हम पावर कह सकते हैं. इलाइट्स का मीनिंग नहीं. Elites are a group of people who सोशल. the greatest power and decision making ability in any organization or society. तो elites वो लोग हो गए जिनके पास में सबसे ज्यादा पावर है और सबसे ज्यादा वेल्थ होगी, सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होगी. So these people are elites. So if decision is taken through elites votes, that means decision is being taken through votes of those who are in power, who control the not necessarily in power, who control the power. तो ये तो नहीं होगा ना डेमोक्रेसी में. हाउ कैन सच ए डिसीजन बी मोर एक्सेप्टेबल? अभी फार्मर्स मूवमेंट चल रही है, तो जो फार्म लॉज पास करने थे, तो द डिसीजन हैज बीन टेकन बाय एलिट्स. इट वाज नॉट डिस्कस्ड विद द पीपल. तो वो प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो गया. तो obviously decision taken by elites votes is not going to be more acceptable. A, taken swiftly and implemented quickly. So इतना अगर कोई भी swiftly or implemented, if any decision is going to be implemented quickly and taken swiftly, so that means there are chances that it is being taken unilaterally. क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर कंसल्टेशन वगैरह करते हैं तो it takes time. So normally these kind of decisions are taken in authoritarian government. तो A option भी नहीं होगा. Such decisions are also not necessarily acceptable. Demonetization कर दिया 2016 में, बताया नहीं लोगों को. It was taken
quite swiftly and implemented very quickly and secretively. Still, इसका जो impact था, मतलब at least now it is not acceptable to the people. B, taken by giving privileges to the people. If people are given privileges, that does not mean that you're going to get you're going to make the people accept the decisions. So B option भी नहीं होगा. B option होगा taken after following the due process. अब due process क्या होता है? कोई भी लॉ जब पास होता है ना, in our constitution it should be following due process of law and procedure established by law. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर ही प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ आ जाता है कि मतलब जो लीगल प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, सो दैट शुड बी फॉलोड इफ यू वांट टू पास एनी लॉ. तो अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया है तो इट इज बीइंग पास्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. तो अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया है तो दैट मीन्स द लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और जो भी कंसल्टेशन प्रोसेस है वो किया गया है वो. तो सच काइंड ऑफ डिसीजंस आर मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल. अगर सबने मिलके पास किया है, पूरी पार्लियामेंट ने मिलके पास किया है, तो इट इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल. सो डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. कोई डाउट है इनमें? आवाज तो आ रही होगी ना? बहुत सारे बच्चे बार बार. Yes, sir. So I think the signal is quite weak. Sixth question. Three sources are given here. Source A, production across countries. Until the middle of the 20th century, production was largely organized within the countries. What crossed the boundaries of these countries were raw material, foodstuff, and finished products. Colonies such as India exported raw materials and foodstuff and imported finished goods. Trade was the main channel connecting distant countries. This was before large companies called multinational corporations emerged on the scene. Source B, foreign trade and integration of markets. Foreign trade creates an opportunity for the producers to reach beyond the domestic markets, that is, markets of their own countries. Producers can sell their produce not only in markets located within the country, but can also compete in markets located in other countries of the world. Similarly, for the buyers, import of good produced in another country is one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced. Source C, impact of globalization in India. Globalization and great competition among producers, both local and foreign producers, has been of advantage to consumers, particularly the well-off sections in the urban areas. There is a greater choice before the consumers, who now enjoy improved quality and lower prices for several products. As a result, these people today enjoy much higher standards of living than was possible earlier. So, question from source A is, how are MNCs a major force in connecting the countries of the world? हाँ जी, बताइए आंसर. How are MNCs a major force in connecting the countries of the world?
इसमें डायरेक्टली सोर्स में आंसर नहीं दिया हुआ है, सो यू नीड टू गो बियॉन्ड द सोर्स एंड गो इनटू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एमएनसीज. This is the time when you need to answer. अरे भाई ट्राई तो करो. How are multinational? सर इसमें कंट्रीज का कनेक्शन पूछा हुआ है ना कि मतलब जो है हमारा एमएनसीज मींस जो ट्रेड हो रहा है हेल्पिंग इन कनेक्टिंग द कंट्रीज. ग्लोबलाइजेशन चैप्टर है उसका है. तो मल्टीनेशनल बेसिकली मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर हेल्पिंग इन ग्लोबलाइजेशन. तो हाउ इज दैट हैपनिंग? देखो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होता है. अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज अ कॉर्पोरेशन which either invests in other countries. So normally it invests in other countries to produce goods or import raw materials or do other things such as research and development. तो काफी सारी चीजें कर रही होती है एमएनसी. सो बाय डूइंग दिस एज दे आर इन्वेस्टिंग इन अदर कंट्रीज, this is resulting in integration of economies of their country of origin. And the country where they invest, country of investment. तो देखो जिस कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से प्रॉफिट ये अर्न करेंगे, और जिस कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको भी बेनिफिट हो रहा है, बिकॉज दे आर जनरेटिंग इन्वेस्टिंग देयर एंड दे आर जनरेटिंग jobs and producing goods and services there. So through this, economies of both the countries are integrated. तो दो कंट्रीज के केस में ये हो जाता है. लेकिन आजकल क्या है, वी ऑल्सो हैव ग्लोबल चेन्स ऑफ प्रोडक्शन. दैट मीन्स the production process is distributed across countries. अगर प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अक्रॉस कंट्री, दैट मीन्स this thing is going to integrate different countries or the economies of different countries. तो ये छोटा सा करके यू हैव टू राइट इट है. 1 मार्क का ही है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना है. मैक्सिमम 2 to 3 लाइंस में यू नीड टू राइट डाउन दिस आंसर. अंडरस्टूड? यस सर. Okay, from source B we have, how does foreign trade become a main channel in connecting countries? Okay, how is now foreign trade a main channel in connecting countries? आंसर ही होगा लेकिन थोड़ा डिफरेंट होगा. ट्राई तो करो भाई. सर इसमें डिस्प्ले लोकेशंस के थ्रू, मतलब जो हमने पढ़े थे उसमें बाय रोड और बाय वो तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया ना. We are talking about how does foreign trade become a main channel in connecting countries. So how is foreign trade connecting different countries? तो कनेक्ट किस तरीके से कर रहा है, तो प्राइमरीली इकोनॉमिक्स का ही है.
देखो फॉरेन ट्रेड की बात हो रही है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है वैसे। तो कोई प्रोड्यूसर है, so the producers can sell their products in other countries और इससे वो प्रॉफिट अर्न करेगा। जो कंज्यूमर है, सो कंज्यूमर गेट्स मोर चॉइस फ्रॉम फॉरेन सेलर्स। और अगर किसी भी चीज की कोई भी शॉर्टेज होती है तो दोज थिंग्स कैन बी इंपोर्टेड थ्रू। सो दिस इज द प्राइमरी मींस बाय व्हिच द डिफरेंट कंट्रीज आर इंटरकनेक्टेड थ्रू ट्रेड। तो जो प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूसर है, अगर मेरी कंट्री में कोई प्रोड्यूसर है, दैट प्रोड्यूसर कैन सेल हिज प्रोड्यूस टू अदर कंट्रीज एंड द कंज्यूमर इन अदर कंट्रीज कैन have a greater amount of choice for products. So this is the main way in which the producers and consumers, the countries are interlinked foreign trade. अभी इंटरलिंकेज और अच्छे से कैसे देखो, अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्ट्स बेचता है एंड ही इज अर्निंग प्रॉफिट, दैट मींस ही इज आल्सो गोइंग टू एक्सपैंड द प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस मोर। अगर डिमांड बढ़ जाती है तो ही विल बी एक्सपैंडिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस मोर। तो मतलब अगर एक्सपोर्ट हो रहा है, फॉरेन ट्रेड हो रहा है, तो उसकी वजह से द प्रोडक्शन इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन इज गोइंग टू इंक्रीज। तो चाइना ऐसे ही बेनिफिट कर रहा है बिकॉज इट इज एक्सपोर्टिंग अ लॉट। तो फॉरेन ट्रेड की वजह से इट इज एक्सपोर्टिंग एंड इट्स इकोनॉमी इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज इंपोर्टिंग इट्स प्रोडक्ट्स। Okay, 26.3, how is globalization beneficial for consumers? क्या क्या बेनिफिट्स हैं, पैराग्राफ में ही दिए हुए हैं भाई। सही। इसमें जो चीप लेबर्स हैं वो चाहिए होते हैं, ओके, और इसमें लोअर प्राइजेस, और उसकी जो क्वालिटी होती है उसमें लोअर प्राइजेस भी होते हैं। तो चीप लेबर का यहाँ पर नहीं आएगा ना, चीप लेबर का तो प्रोड्यूसर के लिए बेनिफिट हो गया, कंज्यूमर के लिए नहीं। कंज्यूमर कैसे बेनिफिट कर रहा है, तो ही इज गेटिंग मोर चॉइस। सबसे पहले ज्यादा अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स वो परचेज कर सकता है। इसके अलावा द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स is improved, then he is getting better quality at lower cost. So इसके साथ में कह सकते हो he is also getting better service, सर्विस स्टैंडर्ड्स। ये एडिशनल है, आपका पैराग्राफ में नहीं दिया हुआ है, बाकी चीजें तो जो एक्सट्रैक्ट है उसमें दिया हुआ है। सर कंज्यूमर के लिए रॉ मटेरियल्स नहीं इम्पोर्टेंट होंगे? क्यों इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर रॉ मटेरियल थोड़ी खा रहा है, कंज्यूमर इज परचेजिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो अगर आप वीट भी बेचते हो तो वीट इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर यू। कंज्यूमर उसको खरीद रहा है एंड ही इज गोइंग टू कंज्यूम दैट वीट। Okay, 26.4, dash means free interaction of an economy with the economies of rest of the world. Privatization, liberalization, globalization, and technology. So what does mean a free interaction of economy with the economies of rest of the world? इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा, अगर ये नहीं कर सकते तो फिर ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट ईयर कर लेना 10। सर ग्लोबलाइजेशन। हाँ, ग्लोबलाइजेशन। So C is going to be the answer for this one. ठीक है, 27th क्वेश्चन सेक्शन डी पे हैं अब हम। Finally, we are over with the extract-based questions. How did non-cooperation movement start with participation of middle class in the cities? Explain its impact on the economic front. बताइए, how did non-cooperation begin with the participation of the middle class in cities? तो बेसिकली सिटीज में मिडिल क्लास ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। सबसे पहले ये बता दो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब थी, व्हेन डिड इट हैपन?
1931 में हुई थी ना, हाँ कि नहीं? Are you just going through the book to find out the answer? तो बुक्स नहीं लेके बैठे हैं। तो 1931 में ही तो थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो जवाब दे सकते हो। यस और नो? यस सर। ठीक है, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब थी? 1920 में we had a non-cooperation movement. So this was after the beginning of the खिलाफत movement. तो इसलिए non-cooperation movement को खिलाफत and non-cooperation movement भी कहते हैं। 1919 में primarily खिलाफत movement began. So this movement was led by Gandhi ji, and Gandhi मेरा साथ दो and I'll get you independence or at least self rule or स्वराज in 1 year. तो नॉन कॉपरेशन का मतलब था that the people of India are not going to cooperate with the British, they are not going to support the British and not going to work. सेल्फ गवर्नमेंट्स का था शायद। हाँ सेल्फ गवर्नमेंट्स का था, गांधी जी ने जो शुरू किया था। पढ़ने लगता हूँ। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मतलब कॉपरेट नहीं करेंगे, जो भी काम कर रहे हैं ना आपके साथ में तो वो काम नहीं करेंगे। तो लोग क्या क्या काम करते थे, मान लो कोई गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहा है, तो इफ दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो वो क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू लीव देयर जॉब्स। इफ समवन इज बाइंग गुड्स, अगर कोई फॉरेन क्लॉथ्स खरीद रहा है, फॉरेन क्लॉथ खरीद रहा है, फॉरेन गुड्स कर रहा है, तो दे आर गोइंग टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स एंड अडॉप्ट स्वदेशी goods. So they are going to boycott foreign goods and adopt Swadeshi goods or start using Swadeshi goods. जो भी लीगल कोर्ट्स होते हैं जुडिशरी में, तो कोर्ट्स में इन द कोर्ट्स लॉयर्स गिव अप देयर प्रैक्टिस। अब अर्बन एरियाज में स्टूडेंट्स भी होते हैं जो स्कूल्स और कॉलेजेस, स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट्स बॉयकॉटेड द क्लासेस। अब स्टूडेंट्स नहीं जा रहे हैं क्लास में, सो टीचर्स सर इकोनॉमी इफेक्ट हुई थी। टीचिंग इकोनॉमी तो ऑब्वियसली इफेक्ट होगी, लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है हाउ डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास इन द सिटीज। तो जो ये एग्जांपल दिए हुए हैं तो दीज आर मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। तो मिडिल क्लास वुमेन भी जो थी, इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन और लिखोगे, हाउ डिड मिडिल क्लास वुमेन पार्टिसिपेट। सो मिडिल क्लास वुमेन वर एंगेज इन पिकेटिंग ऑफ shops which were selling foreign goods. So जो पहला पार्ट है उसके कितने पॉइंट्स हो गए आपके? 2 3 4 एंड 5। तो 5 पॉइंट्स आपके फर्स्ट पार्ट के हो गए। देन एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। तो हाउ डिड इट इम्पैक्ट द इकोनॉमी। तो अब देखो बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स हो रहा था एंड पीपल वर अडॉप्टिंग स्वदेशी गुड्स, प्लस विमेन वर पिकेटिंग शॉप्स व्हिच वर सेलिंग फॉरेन गुड्स। तो इससे इंपैक्ट क्या हुआ कि इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स, मेरे पास में फैक्ट्स प्रॉपर नहीं है, आपके बुक में फैक्ट्स मेंशन्ड है, डिक्लाइंड एंड देयर वाज ग्रोथ ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज। तो जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने बेनिफिट किया। अभी देखो वो थोड़ा सा नेशनल सेंटिमेंट अभी बढ़ रहा है, तो पीपल आर टॉकिंग अबाउट बॉयकॉट ऑफ चाइनीज
कंपनीज, चाइनीज एप्स, चाइनीज मोबाइल फोन, चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स, सब चाइनीज जो भी है, इंक्लूडिंग हक्का नूडल्स, सब कुछ बॉयकॉट कर दो। तो उसमें टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, एक हमारी कुछ टाइम पहले कंपनी थी विच स्टॉप्ड प्रोड्यूसिंग मोबाइल फोन्स, दैट इज माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स ने एक फोन निकाला विद द नेम इन नोट 1 समथिंग। तो इन स्टैंड्स फॉर इंडिया, और इनका नारा भी है बाय इन नोट 1 इंडिया के लिए, कि भाई खरीदो, जो ये मोबाइल फोन हमने बनाया है वो खरीदो, और किसके लिए खरीदो? इंडिया के लिए। क्यों? चाइना ने हमारे लोगों को वहां पर मारा है, हमारे सोल्जर्स को मारा है, तो हम चाइनीज नहीं खरीदेंगे, इंडिया वाला खरीदेंगे, चाहे कैसा भी प्रोडक्ट बनाए हो। तो अल्टीमेटली कौन बेनिफिट कर रहा है? इंडियन बुर्जुआ और द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, दैट इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस। तो उस टाइम में भी फॉरेन गुड्स आर गोइंग टू बी बॉयकॉटेड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, ऑब्वियसली खरीदना चाहिए, इंडियन मेड प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए। So import of foreign goods is going to decline, and the indigenous industries are going to increase. अब देखो इसके साथ में जो भी बॉयकॉट हुआ था, schools and colleges were also established. ये भी इंडियन schools and colleges थे, Indian schools and colleges were established even during this time. तो बॉयकॉट करने लगे जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे, और वो बॉयकॉट किए जाने लगे, एंड इन देयर प्लेस इंडियन स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर एस्टैब्लिश्ड। सो इवन यू कैन राइट दीज 2 पॉइंट्स इन द इकोनॉमिक फ्रंट। अंडरस्टूड? यस सर। और बाकी लोग सो रहे हैं? क्लास में सोने का मजा अलग ही है ना, चाहे फिजिकल क्लास हो, ऑनलाइन क्लास हो। ऑनलाइन क्लास में तो पता भी नहीं चलना सो रहे हैं कि नहीं। ओके, ऑप्शन वाला, व्हाई डिड महात्मा गांधी फील द नीड टू लॉन्च अ ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन 1920? गिव रीजंस। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है। व्हाई डिड महात्मा गांधी फील the need to launch a broad based movement in 1920? तो 1920 में we are again talking about the non cooperation movement here. Guess करो, give some reasons why was there a need to launch a broad based movement? Why was non cooperation movement launched? क्या क्या रीजंस हैं? इसे कहानी याद करो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले क्या हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में थी, इससे पहले क्या क्या चीजें हुई थी? 1919, 1918, 17, उल्टा चल के देखो क्या क्या चीजें हुई थी, and based upon that you will be understanding why did Mahatma Gandhi feel the need to launch non-cooperation movement in 1920. So 1915 में साउथ अफ्रीका वाला केस था कि वहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट्स का जो था, तो वहाँ पे इंडिपेंडेंस हुई 1915 में। साउथ अफ्रीका की इंडिपेंडेंस तो वहाँ से महात्मा गांधी लौट के आए थे। ठीक है, वापस आ गए, लेकिन इंडिपेंडेंस नहीं हुई थी। हाँ, महात्मा गांधी तब उन्होंने ये हमारा जो था सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था। किसके अगेंस्ट? कौन सी सत्याग्रह? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 में उसके बाद उन्होंने शुरू किया था। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया ना आपने वैसे? नो सर, पढ़ाई भी नहीं किया है। कर लो भाई थोड़ा सा। सर कल नहीं किया था, और बाकी तो कर रखा था, कल मैंने ये भूल गई थी मतलब करना। ये कितने दिन पहले दिया था? कल की थोड़ी बात है। नहीं सर, दिया तो था आपने वोट पहले। हाँ चलो, देखो, महात्मा गांधी फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, तो द फर्स्ट रीजन वाज द राउलेट सत्याग्रह। याद है राउलेट सत्याग्रह था? एंड जलियांवाला। यस सर, 1919। तो राउलेट सत्याग्रह शुरू किया था और जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था
So that was a major reason that another broad-based movement was required. राउलेट एक्ट क्या थी जिसके अगेंस्ट राउलेट सत्याग्रह लॉन्च किया था? ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछते हैं राउलेट एक्ट का. Rowlatt Act was an act passed to prohibit Indians from carrying firearms, even for their defense. No, sorry, firearms. Rowlatt Act was it empowered the law enforcement agencies to jail any person without trial for a period of 2 years. तो वो तो आर्म्स एक्ट जो मैंने बताया था ना, इससे पहले आर्म्स एक्ट थी. राउलेट एक्ट में किसी को भी पकड़कर जेल में डाल सकते थे 2 साल के लिए विदाउट एनी ट्रायल. तो उसके अगेंस्ट में राउलेट सत्याग्रह किया था. एंड ड्यूरिंग द राउलेट सत्याग्रह ऑन 13th of March जलियांवाला बाग इंसिडेंट हैपेंड. सो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, एक तो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना था एंड अलोंग विद दैट खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गई थी. So 13 March और 13 अप्रैल 13th April अप्रैल के आसपास में शुरू किया थे सत्याग्रह शायद, और 13th अप्रैल को ही ये इंसिडेंट हो गया था. तो इसके बाद में खिलाफत इशू था कि दैट द खलीफा ऑफ Ottoman Empire was disregarded and the Ottoman Empire was being dismembered. So because of the disrespect caused by the Britishers to the Khalifa, the Indian Muslims led by Maulana Muhammad Ali and Shaukat Ali, both brothers called as Ali brothers, so both of them, they started Khilafat movement. So Gandhi ji, in order to build Hindu-Muslim unity, asked for the Congress to support it. तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी प्रमोट करनी थी, तो इसलिए सपोर्ट करने के लिए कर दिया. एंड अल्टीमेटली दिस कल्मिनेटेड इनटू लॉन्चिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो ये 3 पॉइंट्स लिखोगे इसमें. एक ये भी लिख सकते हो कि इससे पहले कि the Britishers had promised reforms after वर्ल्ड वॉर, और स्पेशली जो रिफॉर्म था वो स्वराज का था विच वॉज प्रॉमिस्ड. तो इसकी जगह राउलेट एक्ट उन्होंने पास कर दिया था. तो दैट इज व्हाई द मूवमेंट वाज लॉन्च्ड. ठीक है, हो जाएगा अभी. यस सर. अभी यूं कर लेते हैं, यही 27th तक कर लो, जो 20 क्वेश्चन नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर 27 ये आप कर लीजिए, बाकी का डिस्कस कर लेंगे. ओके सर. ओके, सो अगर कोई डाउट हो तो बता सकते हो, अदरवाइज आई डिस्कनेक्ट द क्लास.